विनीत खड़े हो जाओ, ये ध्यान से सुनना है, जहाँ गलती होगी आपको बतानी है, ठीक है? बोलो। The Neolithic culture of Ganges Valley and Central India. In the Ganges Valley and in Central India, some Neolithic sites were found at Javan and Chopani. Side of इनके सर नाम स्किप कर देता हूँ, बहुत अजीब है। ठीक है। Early evidence of rice cultivation dated to 3,6500 BC. Sites are characterized by the core market portrait or are important Neolithic sites in these areas. The sites have also the evidence of poultry and the animal domestication. People of Neolithic use a type of pottery with gold impression on the surface, and they use microlithics, bone and angular tools also, but these sites are flourished till about the middle of the second. एक सेकंड बताओ क्या बताया अभी? अभी रिसेंटली किस चीज के बारे में बता रहे हैं? कौन से कल्चर के बारे में बात चल रही है? नियोलिथिक में कौन से कल्चर की बात चल रही है? नियोलिथिक में अलग अलग कल्चर्स थे, तो अभी कौन से कल्चर की बता रहे हैं? ठीक है, चलो आगे। Neolithic culture of Eastern India. है नहीं अभी? Sites are found at कोई बात नहीं। हाँ। many sites in Bihar and West Bengal. Birampur and Chirant are the some of prominent Neolithic sites in the region, along with Kochai or last में शंकराचार्य। नाम Neolithic culture of South India. Neolithic culture of South India have found in Andhra Pradesh and Karnataka and the northwestern part of Tamil Nadu. More than 200 Neolithic sites have been identified as part of Neolithic complex. These sites are found near the granite hills with water sources. Sites have been spotted in the river valley of Godavari, Krishna. सर वो जो बड़े बड़े नाम ठीक है, बैठ जाओ। सही बताया? सारी लाइन पढ़ रहा था, वैसे बुक में एज इट इज लिख दिया ना, कोई समरी तो लिखी नहीं। सारे मेन थोड़ी हो जाएंगे, तो बुक को दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है? बैठ जाओ। और आप बताओ, आपने सिर्फ कल वाला बताना है, इसने बहुत पहले से समरी बताई है, सिर्फ कल। कहाँ लिखा है? कल वाला जो कल पढ़ाया था, सिर्फ उस कल्चर के बारे में बताओ। कल कौन कौन से कल्चर्स पढ़ाए थे? ईस्टर्न था, साउथ इंडिया था, नॉर्थ ईस्ट था, ठीक है ना? उन कल्चर्स के बारे में बताओ। Neolithic culture of Western India is prominent in Bihar and West Bengal. Important sites: Bilwanpur, Chirag, Kochai, Mongol Besan, and Sankarajam. Pointed bullet cells, Caesar and shoulder axis housing. ठीक है, और सदर्न इंडिया की? Neolithic culture of South India is prominent in Andhra Pradesh, Karnataka, northwestern Tamil Nadu. Ash mounds near river valleys of Godavari, Krishna, Tungabhadra, Kaveri rivers. Major sites: Brahmagiri, Maspi, Pikihal, Hallu, Payampalli, etc. Evidence of habitation by houses and burials: Budihal, Ugnur, Palgoi, at important ash mound sites. बरियल्स होता है, बेरियल्स नहीं होगा, ठीक है? Neolithic culture of northeastern India, dated between 2500 to 1500 BCE. Shouldered axes and splayed cells have been found. Evidence of shifting cultivation, building stones, wooden memorials, presence of Austroasiatic languages. Daojali, Heading, and Saltaru, important sites in Assam, show cultural similarities with Southeast Asia. ठीक है, बैठ जाओ। हम पैलियोलिथिक मैन को है ना एक और किसी नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं हम क्वार्टजाइट मैन। उसको हम बोलते हैं
क्यों? ये हमने पढ़ा नहीं, हम इसको ये बोलते हैं, लेकिन इसको बोला जाता है। पैलियोलिथिक मैन को क्वार्टजाइट मैन के नाम से जाना जाता है। तो रीजन क्या है? नहीं बताना। सौरभ, पुलकित, सोचो, कुछ तो सोचो। सर कुछ मिलेगा नहीं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। वीर, नैतिक, Just because they use the tools are made up of different quads. क्वाड्स। उस टाइम पे जो स्टोन टूल्स मिल रहे थे, दे वर मेड अप ऑफ क्वाड स्टोन्स। जो स्टोन था उस टाइम पे, जितने भी स्टोन टूल्स थे वो क्वाड्स के थे। इसीलिए इस टाइम पे पीरियड में जितने भी हुए उनको हमने क्या बोला? क्वार्टजाइट मैन। इसीलिए जो टूल्स का किस किस चीज से टूल बन रहे हैं वो भी ध्यान रखना है, वो मटेरियल आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मेसोलिथिक में क्या चेंजेस आए थे? बैठ जाओ। यहाँ पर पैलियोलिथिक में तो क्वार्ट्ज से बन रहे थे, मेसोलिथिक में किस चीज से बन रहे हैं? कौन से स्टोन से? नाम हो तो सिलिका रिच, सिलिका रिच स्टोन थे। ठीक है, ये किस लिए बता रहा हूं? कल साउथ इंडिया में हमने पढ़ा था कि जो उनका जो रेजिडेंस है, जो उनके सेटलमेंट्स है, दे वर नियर दी ग्रेनाइट हिल्स। ग्रेनाइट हिल्स के नजदीक था ना। दैट मीन्स कि साउथ इंडिया में जो लोग थे वो ग्रेनाइट को यूज कर रहे थे। ठीक है ना। वो स्टोन किस किस टाइप के हैं वो आपको एक बेसिक सा डिफरेंस पता होना चाहिए कि किस किस एरिया में किस किस स्टोन का यूज हो रहा है। ठीक है ना। तो डिफरेंसेस में जब लिखो तो ये पॉइंट ऐड कर लेना अपना। क्लियर है? नियोलिथिक कल्चर को ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना। ऑलमोस्ट किस लिए बोल रहा हूं? क्योंकि मेरी तरफ से मैंने किया, आपकी तरफ से आप लोगों ने नहीं किया। आपने जो डिफरेंसेस लिखने थे अभी कंप्लीट नहीं किए हैं, वो कर लिए? कितनों ने किया कंप्लीट? नियोलिथिक कल्चर में, मेसोलिथिक कल्चर में और पैलियोलिथिक कल्चर में जो डिफरेंसेस हैं, कितनों ने कंप्लीट किया? किया है? ठीक है। और किसी ने नहीं किया? सेकंड, कल का जो होमवर्क था कि नियोलिथिक कल्चर में जो अलग अलग कल्चर्स हैं उनके बीच में डिफरेंसेस लिखने थे, कितनों ने किया? ठीक है। एक और होमवर्क था कि कुछ रिवर्स को नोट डाउन करना था मैप में। मैप में रिवर्स को नोट डाउन करना था। ईस्टर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनको याद करना था, उनको याद करना था। किया है? ठीक है। त्रिपुरा की लोकेशन बताओ। वैसे बताओ। मैप में? ठीक है। सर आ गया। सेवन सिस्टर्स। इस पर तो लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं लिखा हुआ नहीं, मुझे ब्लैंक चाहिए। इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, कहाँ है? मतलब इसमें अगर हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं मुझे, चलो ठीक है मैं इसी से पूछ लेता हूँ। कोई बात। कहाँ पर? कहाँ है? हाँ, इसमें बताओ त्रिपुरा कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे। आओ आगे आओ। इसके
तीनों साइड क्या है? यहाँ पर क्या है? ये लोकेशन कौन सी है? ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश है। तो अगर कोई पूछे कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो दैट इज त्रिपुरा इन इंडिया। सबसे ऊपर कौन सा स्टेट है? उसके बाद यहाँ पर कौन सा है? फिर से गड़बड़ हो गया। ये कौन सा है? और ये मिजोरम। ठीक है ना, सबसे लास्ट में हमारा मिजोरम आएगा। अब मेरा क्वेश्चन है, इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन से स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज, हमें इंडिया से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जाना हो तो कौन सी प्लेस आती है बीच में जिसमें से होकर के हमें जाना पड़ेगा? उस सिलीगुड़ी को हम क्या बोलते हैं? गेटवे टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया तो हो ही गया, लेकिन उसको हम कुछ और किसी नाम से बोलते हैं। चिकन नेक। उसको हम बोलते हैं चिकन नेक, क्योंकि वो बहुत पतला सा एरिया है। इसको देखें तो बहुत ही पतला सा एरिया यहाँ पर है जिसके थ्रू हम नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड है। कहाँ गए? ठीक है ना, इस पोर्शन को हम बोलते हैं चिकन नेक। फिर गायब हो गया वो। ना मैं यहाँ से चले जाता हूँ। ठीक है, इसमें वैसे ही नहीं समझ में आया। मुझे चाहिए सैटेलाइट मैप। कहाँ गया? इस पोर्शन पे ये सिर्फ यही एरिया है, पर दिखेगा नहीं ना इसमें, क्लियर इसमें दिखेगा नहीं। हमारा ये पोर्शन है ना छोटा सा, यहाँ पर ये पोर्शन, ये कौन सा है? चिकन नेक बोलते हैं इसको। नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होने का हमारे पास बस यही एक रास्ता है। ठीक है ना, इवन त्रिपुरा जाना हो तो हमें यहाँ से, अगर वेस्ट बंगाल से कलकत्ता से जाना है तो यहाँ से घूम करके यहाँ पहुँचना पड़ेगा। ये तो मैंने बाईपास कर दिया सीधा। ठीक है ना, बाय सी जा सकते हैं। बाय सी जाने के लिए बांग्लादेश की मदद चाहिए, और इसीलिए हमारे लिए बांग्लादेश इज नेसेसरी, कि ताकि हम कट ना हो जाएं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से। और इसीलिए हमारे लिए नेपाल और भूटान दोनों जरूरी हैं, कि चाइना का अगर थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस हुआ तो हम इस रास्ते से जाते रहेंगे। तो इसीलिए इस पोर्शन में अभी इंडिया बहुत काम कर रही है। अभी रिसेंटली जब न्यूज में पढ़ोगे तो हम इस पोर्शन के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, और उसके लिए हम बांग्लादेश से अलग अलग ट्रीटीज कर रहे हैं, अलग अलग एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। जहां पर अभी रिसेंटली पास्ट में पढ़ोगे तो हमने एक रेलवे लाइन अप्रूव करवाई है बांग्लादेश से, जो कनेक्ट करेगी आपकी त्रिपुरा से यहां तक। त्रिपुरा और बांग्लादेश को आपस में कनेक्ट कर रही है। बांग्लादेश से ही हमने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में अप्रूवल लिया कि हम सी रूट के थ्रू बांग्लादेश के वाटर से जाकर के सीधा, कहाँ गए, इसके नीचे का एरिया दिखाई देगा, म्यांमार के नीचे से यहाँ से एंटर करके हम यहाँ से इंडिया में घुस सकते हैं। ठीक है ना, तो जियो पॉलिटिक्स में भी थोड़ा सा उसको ध्यान रखो कि हमारे लिए जब ये जरूरी है तो क्यों जरूरी है, हम बांग्लादेश के साथ इतना इंटरेस्ट लेके क्यों काम कर रहे हैं, हम नॉर्थ ईस्टर्न या साउथ ईस्ट एशिया के साथ क्यों इतने अपने रिलेशंस अच्छे करना चाह रहे हैं। दैट इज ड्यू टू दिस, कि यहां से एक्सेस नहीं है हमारा और कोई। ठीक है ना, वो एक्सेस को बढ़ाने के लिए हमें यहाँ के कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस अच्छे चाहिए, और रिलेशंस अच्छे चाहिए तो उसमें बीच में आया था म्यांमार। और म्यांमार में क्या हो रखा आजकल? मिलिट्री कू है ना, मिलिट्री कू है वहां, मिलिट्री का शासन चल रहा है। ठीक है ना, वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, और डेमोक्रेसी आजकल आप पढ़ रहे हो क्या होती है। ठीक है, क्लियर है?
तो जब मैप्स पढ़ो तो आसपास में लोकेशन में क्यों इंपॉर्टेंस है और क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ के स्टेट्स पता है अभी, ठीक है। चलो अब इस पे ना जाके अभी हम स्टोरीज पे चलेंगे। हाँ, अब हम स्टोरीज की बात करेंगे ना, वी लर्न अबाउट सम स्टोरीज, ठीक है ना। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उस टाइम पे हमें ये बताया गया कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है। ब्रिटिशर्स ने आकर के हमें क्या समझाया कि आप लोग बहुत पुराने जमाने के हो, बहुत ही बारबरिक हो। उन्होंने जो वर्ड यूज किया था दैट वाज बारबरिक। ब्रिटिशर्स ने क्या बोला इंडियंस को? बारबरिक। कि आपके यहाँ तो ऐसा कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, आपका कोई पास्ट नहीं है और आपका वे ऑफ लाइफ इज टू ओल्ड फॉर दिस न्यू वर्ल्ड, कि आप इस नए वर्ल्ड के हिसाब से बहुत ही पुराने विचारों के हो, तो इसमें एग्जिस्ट करने के लिए यू नीड सम चेंजेस। और जब वो इनकी बातें कर रहे थे तभी ब्रिटिशर्स आर्मी में एक पर्सन था, आर्मी उसका पैशन नहीं था, इसीलिए आर्मी छोड़ दिया उसने। उसको अच्छा लगता था एक्सप्लोर करना, नई नई जगह ढूंढना, तो उसने एक नई जगह ढूंढी और वहां पर उसे दिखाई दिया कि ये लोग जिसको हम बहुत पिछड़ा हुआ कह रहे थे, पास्ट में दे वर वे टू एडवांस्ड फ्रॉम अस, कि पास्ट में ये लोग हमसे बहुत आगे थे, जिनको हम आज बोल रहे हैं कि यू आर टू बैकवर्ड। तो पास्ट में ऐसा क्या मिला उनको कि जिससे उनको ये लगा कि इंडियन सिविलाइजेशन वाज मच एडवांस्ड टू देयर सिविलाइजेशन? ऐसा क्या मिला? उनको रियलाइजेशन नहीं हुआ। 1826 1831 के आसपास उन्हें हड़प्पन साइट मिली थी। कौन सी साइट मिली थी? हड़प्पन साइट मिली। उन्हें पता नहीं था कि मिला क्या है। कर क्या रहे थे? वहां पर एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, पंजाब का एरिया था, वहां पर वो रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। उस रेलवे लाइन में क्योंकि 1836 के आसपास कुछ मिला है, तब तक कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा क्या है, और उसके बाद 1850s के बाद में रेलवे लाइंस बिछ रही हैं। वो रेलवे लाइन बिछाते बिछाते एक जगह पहुंचे जहां उन्हें बहुत सारी ईंटें मिली और वो ईंटें थी पकी हुई। उनको लगा कि हमारे लिए तो काम आसान हो गया, वो कंकड़ पत्थर बिछा रहे थे, उन्हें पकी हुई ईंटें मिली, और वो ईंटें जो उस टाइम पे भी कोई नहीं बना पा रहा था। हम 1850s के बाद की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे भी वैसी ईंटें नहीं बना पा रहे थे जिस स्टैंडर्ड की, जिस क्वालिटी की ईंटें उन्हें मिली। वो ब्रिक्स एक रेशियो में बने हुए थे और सभी ब्रिक्स एक ही रेशियो की थी, सभी ब्रिक्स का वेट लगभग सेम था, सभी ब्रिक्स की डायमेंशंस अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छी डायमेंशंस में बनाया हुआ था, और सभी ब्रिक्स इतनी मजबूत थी, इतने अच्छे से बेक्ड थी कि उस टाइम पे भी उतनी अच्छी ब्रिक्स उनके लिए बना पाना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने क्या किया, तो हमें खजाना मिल गया और सभी ईंटें उखाड़ करके रेलवे लाइन में बिछानी शुरू कर दी, ठीक है। फिर वहां से कुछ और चीजें भी उन्हें मिली, लेकिन उन्हें उनका इंपॉर्टेंस नहीं पता लगा कि ये क्या हो सकता है। और धीरे धीरे जॉन मार्शल थे, बाद में आए, ठीक है। उससे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम आए इंडिया में। अलेक्जेंडर कनिंघम ने थोड़ा बहुत पता लगाया कि ये किसी पुराने साइट की निशानी है, कि दिस कुड बी ए ओल्ड साइट जिसको हमें स्टडी करना चाहिए, लेकिन तब तक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें पता नहीं लगा। देन केम जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने वहां से निकली हुई चीजों को स्टडी किया, ठीक है। जो हमारे फर्स्ट इंडियन थे दयाराम साहनी 1921 में, दयाराम साहनी ने 1921 में वहां पे अच्छे से एक्सप्लोर करना शुरू किया, एक्सकेवेट करना शुरू किया, और वो सील वहां पर कुछ मिली, वहां से कुछ चीजें मिली जो ब्रिटेन में गई, और वहां उन पे जब स्टडी की गई तो उन्हें पता लगा कि इनकी सिविलाइजेशन तो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन थी आज से 5000 साल पहले, आज से 5000 साल पहले, यानी कि 3000 BCE के आसपास। तो 3000 BCE के आसपास इतनी एडवांस सिविलाइजेशन में सरवाइव कर रहे थे जिन्हें हम बैकवर्ड बोल रहे हैं। तो इस पास्ट का जब लोगों को पता लगेगा तो क्या फर्क, मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर, कि हमारा पास्ट कितना ग्लोरियस था,
और जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ोगे कि उस टाइम पे बहुत सारे रिफॉर्मर्स ऐसे हुए जो हमें हमारे पास्ट की कहानी याद दिलाते थे कि हमारा पास्ट बहुत अच्छा था और हमें उस पास्ट को आगे लेके चलना है। और उसी पास्ट को प्रूव करने के लिए एक साइट पे अब हमें ऐसी चीजें भी मिल गई जहां पर हमें पता लगा कि वहां जो सिटीज बन रही थी, वहां जो सिविलाइजेशन डेवलप थी, वो बहुत ज्यादा एडवांस थी। और आज के कंपेयर करें तो आज से भी वो बहुत आगे थे। अगर मैं आज के हिसाब से कंपेयर करता हूँ, इवन रोहतक से कंपेयर करूँ, तो उनकी सिटीज बहुत ज्यादा डेवलप थी आज से भी। जो हम प्लांट सिटी बोलते हैं चंडीगढ़ को, अगर कंपेयर करना हो तो चंडीगढ़ से हम कंपेयर कर सकते हैं, रोहतक से भी उनका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। इतनी प्लांट सिटी वो डेवलप कर रहे थे आज से 5000 साल पहले। तो उनका मेंटल लेवल, कॉग्निटिव स्किल्स कितनी डेवलप हो गई होंगी ये हम सोच सकते हैं। उस टाइम पे वर्ल्ड में एक आधी जगह ही थी जहां पर इस तरह की सिविलाइजेशंस डेवलप हुई थी। इजिप्ट में, मेसोपोटामिया, आपकी हड़प्पा वाली, और एक चाइना में थी। ये 3-4 सिविलाइजेशंस थी जो उस टाइम पे डेवलप हुई थी। और उनमें भी सबसे एडवांस डेवलपमेंट अगर हम देखें तो हम 2 सिविलाइजेशंस को पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये वो थी जो सबसे ज्यादा एडवांस थी, और उसी सिविलाइजेशन को आज हमें हमारी क्लास में पढ़ना है। जहां पर अगर हम लिंक देखें उसका लिंक हमें दिखाई देगा नियोलिथिक कल्चर से। नियोलिथिक कल्चर जहां पर क्या डेवलपमेंट हुआ है? एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होने की वजह से सेटलमेंट शुरू हुई है। सेटलमेंट होने की वजह से विलेजेस बने हैं, और विलेजेस में सरप्लस हुआ है, और वो सरप्लस की वजह से ट्रेड शुरू हुआ। और जहां ट्रेड शुरू होगा वहां लोग एग्रीकल्चर से दूर होकर के बाकी दूसरे प्रोफेशंस में भी आएंगे। और आज की अगर हम बात करें, जो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करेंगे, उसको हम बोलते हैं दैट वाज द फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्या बोला जाता है? फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। सिटीज डेवलप हो रही थी यहां पर। तो जब अर्बनाइजेशन बोल रहे हैं तो आपको 2 चीजों में डिफरेंस पता होना चाहिए। फर्स्ट, व्हाट इज अर्बनाइजेशन। सेकंड, डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। 2 चीजें आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए जब हम अर्बनाइजेशन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट, व्हाट इज अर्बनाइजेशन, एंड सेकंड, अगर अर्बनाइजेशन कुछ है तो रूरल भी कुछ होता होगा। अर्बनाइजेशन इज रिलेटेड टू द अर्बन सिटीज, तो उसके अपोज में अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा? रूरल एरियाज। तो इनमें आपको एक बेसिक सा डिफरेंस पता होना चाहिए क्या। तो व्हाट इज अर्बनाइजेशन अगर आपसे पूछे तो? डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। ओके, और बिल्कुल, अर्बनाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ मूविंग टुवर्ड्स अर्बन एरियाज। प्रोसेस ऑफ मूविंग टुवर्ड्स अर्बन एरियाज, जहां पर अर्बन एरियाज में ज्यादा लोग रहना शुरू करेंगे। रूरल से अर्बन में माइग्रेशन शुरू हो जाएगा। गांव से शहरों में जब माइग्रेशन शुरू होगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अर्बनाइजेशन। तो जब कहीं से कहीं पे ट्रांसफर हो रहा है तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया? ये कौन बताएगा? मानवी, आपका नाम बताया, बताओ। अर्बन एरिया में इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती है और रूरल एरिया में एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, रूरल से थोड़ा बैकवर्ड होता है। किस हिसाब से बैकवर्ड होगा? टेक्नोलॉजी। ओके, और इकोनॉमिकली, और इनकम, और ऑक्यूपेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट, और फैसिलिटीज, एजुकेशन, मॉडर्न एनवायरनमेंट। मॉडर्न एनवायरनमेंट में सब कुछ आ गया। एनवायरनमेंट तो गांव का अच्छा बताते हैं।
डिफरेंट होता है, डिफरेंस तो है ही इसमें। डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अच्छा एनवायरनमेंट और रूरल हो जाएगा। क्या हम इससे डेफिनेशन से बता सकते हैं कि अच्छा एनवायरनमेंट जहां होगा दैट मीन्स वो रूरल एरिया है? ठीक है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस जिससे हम रूरल और अर्बन एरिया को डिफरेंशिएट करते हैं दैट इज एग्रीकल्चर। जहां पर ज्यादातर प्रोफेशन इज एग्रीकल्चर, जहां पर ज्यादातर लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं दैट इज रूरल एरिया। और जिस एरिया में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के अलावा उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में बाकी दूसरी एक्टिविटीज की जाती हो दैट इज अर्बन एरिया। तो मेजर डिफरेंस जो रूरल एरिया और अर्बन एरिया में पता होना चाहिए दैट इज डिफरेंस इन दी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो रूरल एरिया में ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होंगी, यहां पर कम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होंगी। उसके अलावा बहुत सारी और चीजें हमें दिखाई देंगी, ट्रेड हमें दिखाई देगा। जैसे आज के शहरों में बात करें तो शहरों में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे हैं। गांव में इस तरह के प्रोफेशन कम दिखाई देंगे। गांव में ज्यादातर अभी भी लोग एग्रीकल्चर ही परस्यू करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। और उस टाइम पे भी इसी डिफरेंस को समझ करके हमने इसको अर्बनाइजेशन बोला। इसको बोला फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, क्योंकि पीपल वर मूविंग टुवर्ड्स अर्बन एरियाज, सिटीज, जहां पर एग्रीकल्चरल था उनके पास, लेकिन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ बाकी एक्टिविटीज वो ज्यादा उस पे कर रहे थे। ठीक है, तो कभी भी आए फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन वाज क्या था? हड़प्पन सिविलाइजेशन। फर्स्ट फेज क्यों बोला? क्योंकि वो सबसे पहले व्हाई इट इज फर्स्ट फेज? स्टार्टिंग एविडेंस इससे पहले अर्बनाइजेशन का हमें और कोई भी एविडेंस नहीं मिला। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी वर विटनेसिंग द अर्बनाइजेशन। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी वर विटनेसिंग द अर्बनाइजेशन। इससे पहले अर्बनाइजेशन का नहीं मिला। ठीक है, तो हमारा जो प्रोसेस चलेगा, पहले क्या है? हंटर गैदरर्स हैं, सबसे पहले क्या थे? हंटर गैदरर्स हैं। हंटर गैदरर से किस में चेंज हुए? या फिर ठीक है, इसके बाद इसमें ये चेंज आया है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट होने के बाद। उसके बाद इसके बाद कल्चरल डेवलपमेंट्स हुए, है ना? कल्चरल डेवलपमेंट्स हुए, उसके साथ साथ विलेजेस डेवलप हुए। और विलेजेस जब डेवलप होंगे, इसके बाद की जो कहानी आएगी दैट इज अर्बन एरियाज का डेवलपमेंट। और यहां से आगे हम चलेंगे अर्बनाइजेशन। तो ये एक डेवलपमेंट है जो हमने देखा। कहां तक देखा? हमने यहां तक डेवलपमेंट देखा। और अब वो सिटीज में कन्वर्ट होंगे, अब वो हड़प्पन सिविलाइजेशन कहलाएंगे। इसीलिए इसको हम नियोलिथिक कल्चर से अलग करते हैं। यहां पर अर्बन एरियाज का प्रीडोमिनेंस ज्यादा हो जाएगा, अर्बन एरियाज ज्यादा प्रिवेल करेंगे। ठीक है, तो अब हम किसको पढ़ेंगे? हड़प्पन सिविलाइजेशन को। तो एक बेसिक सा आइडिया आपको होना चाहिए। दिस इज फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। व्हेन वाज द सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन? ये वही है, वैदिक एक ही सभी क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन इज सिंगल एंड वन। ये दोनों एक ही हैं। कैसे नाम डिफरेंस है उसको हम पढ़ेंगे, वो नाम डिफरेंस कैसे वो पढ़ेंगे। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन है, सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन कब हुआ? वैदिक कल्चर वैदिक वाज दी विलेज इकोनॉमी, वो सब विलेजेस में थे। महाजनपद, डेवलपमेंट ऑफ जनपद एंड महाजनपद वाज द सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन।
ठीक है, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा याद रखना कि पहले हम विलेज से अर्बन जाएंगे, फिर से अचानक विलेज में पहुंचेंगे और फिर अर्बनाइजेशन शुरू होगा। ठीक है ना। हमें हड़प्पन से वैदिक कल्चर की तरफ जब जाएंगे तो कोई लिंक नहीं दिखाई देगा बीच में। हड़प्पन कल्चर एकदम से एक्सटिंक्ट हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, और फिर उसके बाद जब दोबारा से शुरू करेंगे, उन्हें नहीं पता शहर कैसे होते हैं, उन्हें नहीं पता कैसे जीना होता है, वो दोबारा से विलेज लाइफ से जीना शुरू करेंगे और फिर विलेज लाइफ से फिर से वो अर्बनाइजेशन में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो एक ब्रेक है इसमें बीच में, ठीक है ना, उसमें कहीं कंटिन्यूटी हमें नहीं दिखाई देगी। क्लियर है? ठीक है, तो हम पढ़ें इसे। ये बेसिकली इसका एक्सटेंट है, जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लो या हड़प्पन सिविलाइजेशन कह लो, बोथ आर सेम। इसका एक्सटेंट अगर हम देखें तो हमें कहाँ कहाँ मिलता है? पाकिस्तान में मिलेगा, इंडिया में मिलेगा और थोड़ा बहुत अफगानिस्तान में भी मिलता है, थोड़ा बहुत अफगानिस्तान में भी मिलेगा। अफगानिस्तान में एक साइट मिली है जिसको हम बोलते हैं शौर्तुगई। क्या बोलते हैं? शौर्तुगई। और इसे बोला जाता है इट इज द नदर्न मोस्ट साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जब हम इसको पढ़ेंगे आपको इसका एक्सटेंट पता होना चाहिए। ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है, वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है, सदर्न मोस्ट कौन सी है और नदर्न मोस्ट कौन सी है। तो नदर्न मोस्ट में हम क्या पढ़ते हैं? शौर्तुगई, जो आपकी बुक में भी दिया है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर हमें पढ़ना हो जनरली, अगर हम शौर्तुगई को अवॉइड करके चलें, जो कि अभी रिसेंट एविडेंस है, उसको अवॉइड करके चलें, तो नदर्न मोस्ट साइट इज मांडा। क्या नाम है? एंड मांडा इज इन जम्मू एंड कश्मीर। मांडा इज इन जम्मू एंड कश्मीर। यहां पर शौर्तुगई से पहले नदर्न मोस्ट साइट इसे ही माना जाता था। ठीक है, अगर हम वेस्टर्न मोस्ट साइट की बात करें तो वो कौन सी है? सुत्का गेंडोर। क्या बोलेंगे? सुत्का गेंडोर। ठीक है, ये आपको पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे मिलेगी। ठीक है, ये कहां मिलेगी? पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे। ईस्टर्न मोस्ट साइट की बात करें तो नहीं, राखी गढ़ी नहीं है, आलमगीरपुर। ईस्टर्न मोस्ट साइट की बात करेंगे तो दैट विल बी आलमगीरपुर। यहां पर है नहीं, वो आपके यूपी में मिलेगी कहीं पे। इसके अकॉर्डिंग नहीं, आलमगीरपुर। तो ईस्टर्न मोस्ट साइट इज आलमगीरपुर। सदर्न मोस्ट साइट नहीं, इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना। सदर्न मोस्ट साइट इज दैमाबाद। दैमाबाद दैट इज इन महाराष्ट्र। नहीं, इसके नीचे। ठीक है, सदर्न मोस्ट साइट इज दैमाबाद दैट इज इन महाराष्ट्र। दिस वाज द एक्सटेंट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। ईस्टर्न कहां पर है? आलमगीरपुर। वेस्टर्न कहाँ है? सुत्का गेंडोर। और नदर्न मोस्ट कौन सी है? शौर्तुगई। शौर्तुगई से पहले किसे मानते थे? मांडा। मांडा इज इन शौर्तुगई इज इन अफगानिस्तान। सुत्का गेंडोर इज इन पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे, इज इन पाकिस्तान। ठीक है, और दैमाबाद इज इन महाराष्ट्र, इज द सदर्न मोस्ट साइट। दिस इज द एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, यह हमें इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। कोई बात नहीं, लिख लेना। जो आप वहां ज्योग्राफिकल एक्सटेंट वाला पैरा है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है दिस वाज देयर सिटी प्लान। जो वो सिटीज थी इस तरीके से पूरे प्लांट उसमें रहते थे। देयर क्या? नहीं, पक्का ब्रिक्स।
यहाँ पे जो ब्रिक्स आएंगी इसको हम बोलेंगे पक्का ब्रिक्स। पक्का ब्रिक्स, इसको पक्का ब्रिक्स बोलते हैं। इसको हम बेक्ड ब्रिक्स भी बोल सकते हैं। PUCCA लिखा होगा जहाँ लिखा होगा। ये सर ये बीच में क्या क्या ये बी आई यू कितने किलोमीटर यू अच्छा पक्का ब्रिक्स। इनका जो सिटी का जो प्लान होता था, सर बताओ मुझे बताओ सिटी प्लान क्या था? अरे उसको समझाने के बजाय पूरी क्लास को समझा दो ना क्या था। ठीक है चलो, क्या था सिटी प्लान? उनके रोड्स थे ना, जैसे चंडीगढ़ में हमें मिलते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते थे, बिल्कुल स्ट्रेट रोड्स चलते थे। पूरी सिटी में इस तरीके से स्ट्रेट रोड्स होते थे। जो गलियां थी वो भी ऐसे स्ट्रेट 90 डिग्री में जाकर के मिलती थी, कहीं कोई ऐसा घुमावदार नहीं मिलता। उनका सिटी 2 या 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता था। ज्यादातर 2 हिस्सों में है, कई जगह 3 हिस्सों में भी मिला है। 2 है, 1 इज दिस, एक ये सर वो ऊपर वाला 3 वाला माना जाता है कि वो स्पेशल ओकेजन्स में उस जगह पे जाते होंगे। ठीक है ना, जो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं वो यहाँ रहते होंगे, ये माना जाता है। इनको 2 हिस्सों में जनरली हमारे जो सिटीज हैं वो इस तरीके से डिवाइडेड मिले। एक थोड़े से रेज्ड प्लेटफॉर्म पे मिला है, ये जो छोटा एरिया था ये रेज्ड प्लेटफॉर्म पे था, यहाँ बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी हैं, और बाकी एरिया उससे नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा हाइट कम है। कौन से वाला? ये वाला? ये मैंने नहीं देखा, मैं तो बस ऐसे सिटी के लिए लेके आया कि ये कौन सी, मतलब किस तरह की सिटीज थी। ठीक है ना? क्या चीज? रिवर? कहाँ? रिवर देख के थोड़ी पहचानी जाती है कि कौन सी रिवर है। ठीक है ना? लोकेशन देखकर। ज्यादातर जितनी भी सिटीज थी वो किसी ना किसी रिवर के पास थी। क्या चीज? बाउंड्रीज भी सिटीज के आसपास चारों तरफ होती थी। तो वही बोल रहा हूं, अगर हम आज की सिटी की बात करें तो आज भी इतनी डेवलप्ड सिटी नहीं मिलती है। इनका ड्रेनेज सिस्टम बड़ा डेवलप था। आज क्या कर रहे हैं? रोड बनाते हैं, उसके बाद फिर रोड फाड़ देते हैं, फिर ड्रेनेज दबाते हैं। यही कर रहे हैं। वहां पर सब कुछ प्लान चलता था कि ड्रेनेज बनेगी तो ऐसे बनेगी, उसके ऊपर रोड बनेंगे, पूरा प्लान करके बनाया जाता था। तो आज अगर हमें कंपेयर करना हो तो हम इसको चंडीगढ़ जैसी सिटी से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रहना चाहिए जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे कि हम इसको आज की सिटीज से कैसे कंपेयर करें। और ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन कि हाउ कैन यू कंपेयर टुडे सिटी विद द सिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो दिमाग में होना चाहिए आज क्या है सिटीज में और उस टाइम पे क्या था। ये डिफरेंस आपको हर जगह करते हुए चलना है। ठीक है, चलो अब यहां से पढ़ना है। यवी का पढ़ेगी। The Indus civilization represents the first phase of urbanization in India. While the civilization was in its peak, क्या हुआ? cultures mainly थोड़ा तेज। and Neolithic cultures that we discussed earlier in the chapter prevailed in the other parts of India. ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑलरेडी बता चुका हूं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन क्या हो गया? इंडस सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट फेज ऑफ सिविलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, जहां पर हमें पहली बार दिखा था कि अर्बन सिटीज डेवलप हो रही थी। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट फेज। फर्स्ट स्टेज, फेज इज स्टेज। फेज का मतलब क्या है? स्टेज।
while the civilization was in its peak. और जब ये सिविलाइजेशन अपने पीक इज Highest point. हाईएस्ट पॉइंट, यानी अपने सबसे डेवलप्ड स्टेज पे था, Maximum point. जब ये अर्बनाइजेशन अपने सबसे डेवलप्ड स्टेज पे था, सेवरल कल्चर्स, सेवरल मीन्स बहुत सारे, नॉट सो मैनी बट मोर देन 2, कुछ हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं, बहुत सारे नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सेवरल कल्चर्स नेमली मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर्स, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जब एक साइड में हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रहा है, सेम टाइम पे जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा था, नियोलिथिक चल रहा था। कई साइट्स ऐसी थी जहां पर मेसोलिथिक कल्चर भी उस टाइम पे चल रहा था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ साथ, इस सिविलाइजेशन के साथ साथ अलग अलग कल्चर्स भी हमें यहां पर दिखाई देते हैं अलग अलग जगहों पे, दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर इन द चैप्टर, जो हमने ऑलरेडी इस चैप्टर में बात की है। जहां जहां हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ उनके कॉन्टेक्ट थे वो हमने पढ़ा था, ठीक है, दैट प्रिवेल्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के दूसरे पार्ट्स में उस टाइम पे सरवाइव कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रहा है तो सिर्फ वही सिविलाइजेशन चल रहा है, उसके साथ साथ अलग अलग कल्चर्स अलग अलग जगह पे चल रहे थे साथ में। और कल्चर्स को हमने डिफरेंशिएट कैसे किया, उनके वे ऑफ लिविंग से। जहां अर्बन सिटीज बने वो सिविलाइजेशन हो गया, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जहां एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो चुका है लेकिन सिटीज डेवलप नहीं हुई है तो उसको हमने नियोलिथिक कल्चर ही बोला। और जहां एग्रीकल्चर भी डेवलप नहीं हुआ है, उससे पहले की स्टेज में होमो सैपियंस रह रहे हैं, दैट इज मेसोलिथिक कल्चर, जहां माइक्रोलिथ्स आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पे अलग अलग कल्चर्स चल रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। बोर वगैरह भी होते हैं उसमें। पढ़ेंगे हम इसके बारे में, जब हम पढ़ेंगे एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वन ऑफ द रीजंस कुड बी इन्वेजन ऑफ द फॉरेनर्स, कि बाहर से आके किसी ने इन्वेड किया हो, बाहर से आके किसी ने इनके ऊपर अटैक किया हो सकता है कि ये भी एक रीजन रहा हो इनके खत्म होने का, ठीक है। एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है लेकिन वन ऑफ द रीजंस कुड बी इन्वेजन, ठीक है। नॉमेनक्लेचर, फेजेस एंड क्रोनोलॉजी, यहां से हमें पता लगेगा कि कैसे नाम पड़ा है हड़प्पन कल्चर एंड इंडस कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। पढ़ो। The civilization that appeared in the northwestern part of India and Pakistan in the 3rd millennium BC is collectively called the Indus civilization. Since Harappa was the first site to be identified in this civilization, it is also known as Harappan civilization. This civilization did not appear all of a sudden. The beginning of the Neolithic villages in the region go back to about 7000 BC at the Neolithic site of Mehel. बस इतना ही। यहाँ पर हमें नाम को डिफरेंशिएट करना है कि हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक सा डिफरेंस इसको पढ़ने से पहले, जो फर्स्ट साइट एक्सकेवेट की गई थी, जो फर्स्ट साइट मिली थी, दैट वाज द हड़प्पा, और उसी के नाम पे हमने सिविलाइजेशन का नाम रख दिया, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि नेमिंग के में हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट साइट को भी देख सकते हैं, मेजर टूल्स जो यूज कर रहे हैं उसको भी देख सकते हैं, मटेरियल कौन सा यूज हो रहा था, और क्या कर सकते हैं, रीजन के आधार पर भी कर सकते हैं, रीजन, मटेरियल और द साइट तो हमने देख लिया। फर्स्ट साइट कौन सी थी, हड़प्पा। इस टाइम पे जो मटेरियल यूज हो रहा था दैट वाज ब्रॉन्ज। क्या सेटलमेंट तो ऑलरेडी हो चुका है नियोलिथिक में, सेटलमेंट्स तो हमारी नियोलिथिक में शुरू हो चुकी है। किसके, अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है ना। मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, इसीलिए इसको ब्रॉन्ज कल्चर के नाम से, ब्रॉन्ज पीरियड या ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं,
मटेरियल के नाम पे हड़प्पन कल्चर को ही ब्रॉन्ज एज के नाम से जानेंगे। ठीक है, क्यों बोलते हैं ब्रॉन्ज एज? बताओ क्यों बोलते हैं ब्रॉन्ज एज? मेजरली जो वहां पर मटेरियल यूज हो रहा था दैट वाज ब्रॉन्ज, तो इसको हम ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। और क्योंकि हड़प्पा के बाद यहां पर बहुत सारी साइट्स और मिली, और वो सारी साइट्स इंडस रिवर के आसपास थी। किसके आसपास थी? इंडस रिवर के आसपास थी। तो इंडस रीजन में पाए जाने के कारण ये एक आइडिया आया, या फिर हम कहें कि लोगों ने रिफ्यूट किया कि हम इसको सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहें, जबकि इसका एक्सटेंट तो बहुत ज्यादा है। तो सिर्फ हड़प्पा से इसको जोड़ देना इज नॉट रीजनेबल। तो इसको थोड़ा चेंज करने के लिए उन्होंने इसका नोमेनक्लेचर रीजन के आधार पर डाला। जिस रीजन में ये सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी दैट वाज द इंडस वैली, और इसीलिए हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन। क्या हुआ? ठीक है, तो ये एक ही नाम है तीनों, चाहे आप हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ो, चाहे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ो, या फिर ब्रॉन्ज एज की बात कर रहे हो। ब्रॉन्ज एज भी यही है, इस टाइम पे ब्रॉन्ज यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये तीनों एक ही नाम है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नाम है ऑलरेडी हम इसके रीजन जान चुके हैं, हम हिस्ट्री में पहले ही पढ़ चुके हैं। किसी भी जगह का नाम या किसी भी कल्चर या सिविलाइजेशन का नाम तीन वजह से है, on the basis of the region, on the basis of the material, or on the basis of the first site. First site was Harappa, material used was bronze, and the region was Indus Valley. इसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारी साइट्स मिली हैं, उसके पीछे रीजन है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक करेंगे।